ہم، کم، تم۔ قرآن میں یہ تینوں علامات، یہ تینوں سمبلز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی پیج آپ کو ایسا نہیں ملنے والا جہاں پر یہ تینوں علامات آپ کو نظر نہ آئے۔ تو قرآن میں آپ کو ڈھونڈنا ہے اور جو آج بتایا جائے گا وہاں پر ہائی لائٹ کر کے ترجمہ کرنا ہے۔ اگر پورا ورڈ سمجھ میں نہیں آیا تو ایٹ لیسٹ اس علامت کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے، یعنی جو جو علامات سکھا دی گئی ہیں۔ پھر اگر ورڈ کا ترجمہ آپ کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم 8 کلاسز کر چکے ہیں تو آپ اس قابل ہیں کہ کچھ ورڈ کا ترجمہ آپ کر لیں۔ تو اگر ورڈ کا ترجمہ آپ کر پا رہے ہیں یا جملے کا آپ ترجمہ کر پا رہے ہیں، ترجمہ کرنا ضرور ہے لیکن پھر اپنے آپ کو ویریفائی بھی کرنا ہے کہ میں نے ترجمہ صحیح کیا کہ نہیں کیا، کسی آتھینٹک ٹرانسلیشن سے اپنے آپ کو ویریفائی کرنا ہے۔ یا آپ کے آس پاس جو علماء ہیں جن کو عربی آتی ہے ان سے آپ پوچھ لیں کہ کیا میں نے یہ جو سمجھا ہے صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے، جو علماء واقعی میں ہیں۔ تو اب یہاں پر آتے ہیں ہم، کم، تم۔ یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ ورڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جمع یعنی کہ پلورل، مذکر یعنی کہ میسکولن، یعنی کہ پلورل میسکولن، جمع یعنی کہ 2 سے زیادہ۔ آپ کو کہا گیا تھا کہ عربک میں کیا ہوتا ہے، سنگولر ہوتا ہے، اس کے بعد ڈوئل ہوتا ہے، اس کے بعد پلورل ہوتا ہے، یعنی کہ واحد ہوتا ہے، پھر تثنیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جمع ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب 2 سے زائد کوئی چیز ہو جائیں گی تب عربک میں اسے جمع پلورل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور مذکر یعنی کہ وہ جو میل کو شروع کرے۔ تو یہ جو تینوں علامتیں ہیں اس سے کیا پتہ چلے گا کہ کسی میل کی بات ہو رہی ہے، اور ایک کی نہیں، 2 کی بھی نہیں بلکہ 2 سے زیادہ کی۔ تو یہ جمع مذکر کے لیے یہ تینوں علامات استعمال ہوتی ہیں، یہ تینوں سمبل استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کی بات کرتے ہیں کہ ہم کا کیا معنی ہے۔ یہ علامات کبھی الگ اور کبھی اسم فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھیں گے کہ یہ جو علامت ہم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کبھی الگ استعمال ہوگا اور کبھی اسم فعل اور حرف کے اینڈ میں آ جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیا ہوا ہے، ایک الگ ورڈ کے طور پر استعمال ہوا ہے یہاں پر ہم، اور کہیں پر یہ ملا ہوا آئے گا جو آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ علامت کبھی اسم فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوں گی اور کبھی اپنا ایک الگ وجود بھی رکھیں، یعنی کہ کبھی اپنا الگ استعمال بھی ہوں گی۔ اگر الگ استعمال ہو تو عموماً اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے، وہی ترجمہ کیا جاتا ہے جسے آپ انگلش میں دے کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ ورڈ کیا ہے، ہوا جو آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، ہوا کا یہ پلورل ہے۔ ہوا کا مطلب کیا تھا، وہ، فور اے میل، فور اے میل، جسے آپ انگلش میں ہی کہتے ہیں، اور اسی کا پلورل ورڈ کیا ہو گیا یہاں پر، ہم۔ لیکن انگلش میں یہ جو دے ہے یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جاندار اور بے جان سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہم جو ہے یہ مردوں کے لیے استعمال ہوں گے۔ ڈیٹیل میں آگے بعد میں پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھ لیں، ہم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ سب، یعنی ہوا کا پلورل ورڈ ہے یہ، ہم وہ سب، فیہا اس میں، ہا کا مطلب کیا ہوتا ہے اس، اور فی مطلب میں، یہ پیچھے پڑھایا جا چکا ہے۔ ہم وہ سب اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں کوئی ہمیشہ رہنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں، خالدون۔ ہم وہ سب لا ینصرون، لا مطلب نہیں، ینصرو یہ فعل مضارع میں آپ کو پڑھایا گیا تھا جب آپ کو پیسو وائس پڑھایا گیا تھا۔ تو ینصرو وہ مدد کیے جائیں گے، ینصرونا یہ پلورل ہے، ینصرونا وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ لا گیا تو مطلب کیا ہو گیا، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ہم لا ینصرون وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہم وہ سب لا نہیں یبصرون دیکھتے، ہم لا یبصرون وہ سب نہیں دیکھتے۔ ہم لا یؤمنون وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ ہم وہ سب اصحاب الجحیم جحیم والے ہیں۔ اصحاب کا مطلب ہوتا ہے والا، والی، والے، تو ہم اصحاب الجحیم وہ جحیم والے ہیں۔ اب یہاں اسما کے ساتھ، اسم کا پلورل ورڈ یعنی اسما، تو اسما کے ساتھ اب کہاں آئیں گے، یہ اینڈ میں آئیں گے۔ دیکھیں یہاں پر ہم اینڈ میں آ گئے۔ اگر اسم کے آخر میں استعمال ہو تو اس کا ترجمہ ان سب یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے، اور کبھی پڑھنے میں آسانی کے لیے ہم کیا بن جاتا ہے، ہم بن جاتا ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے ہما کو ہما پڑھا تھا آسانی کے لیے، تو یہ اعمالہم ان سب کے اعمال، دے کیا بن جاتا ہے، دیر بن جاتا ہے، وہی والی بات ہے یہاں پر، اعمالہم ان سب کے اعمال،
सुदूरहुम उन सब के सीने, सुदूर सीने, जुलूदुहुम उन सब के चमड़े, जिल्द जुलूद, जुलूदुहुम उन सब के चमड़े, कल्ब का प्लूरल कुलूब, कुलूबुहुम उन सब के दिल, वजूहुहुम उन सब के चेहरे, औलादुहुम उन सब की औलाद, कौलुहुम उन सब की बात, उन सब का कौल, बिअमवालिहिम अपने मालों से, ये बी का मतलब से, अपने मालों से, बिअमवालिहिम अपने मालों से। तो ये अगर इस्म के साथ आए तो इसका मतलब उन सब या अपना अपनी किया जाएगा। अफ़आल के साथ क्या है, अफ़आल यानी फेल के साथ अगर आखिर में आएंगी तो इनका तर्जमा क्या किया जाएगा, उन्हें या उनको किया जाएगा। मसलन यानी एग्जाम्पल के तौर पर तारिफु हम, आप पहचानते हैं उन्हें, तारिफु आप पहचानते हैं, हम उन्हें। देखिए यहाँ पर इस्म के साथ था तो तर्जमा पहले इसका किया गया, फेल के साथ आ गया तो पहले तर्जमा इस फेल का इधर वाले पार्ट का किया गया। यनफ़उ वो नफा देता है, हम उन सबको या उन्हें, यनफ़उहुम वो नफा देता है उन्हें। आगे तदऊ, तदऊ तुम पुकारते हो, हम उन्हें, तदऊहुम तुम उन्हें पुकारते हो, खुदू पकड़ो, हम इन्हें, अखज़ा, अखज़ा पकड़ लिया यानी उसने पकड़ लिया। अब यहाँ पर अल्लाह शो हो गया यानी कि फाइल जो है वो शो हो गया, सब्जेक्ट जो है आ गया। अखज़ा हुमुल्लाहु पकड़ लिया अल्लाह ने उन सबको, ला तालमु आप नहीं जानते, ला तालमु आप नहीं जानते, हम उन सबको, यदुर्रु वो नुकसान पहुंचाता है, हम उन्हें, तरका उसने छोड़ दिया, तरका उसने छोड़ दिया, बता चुका हूं मैं, तरका उसने छोड़ दिया, मना उसने मना कर दिया, ये क्या है फेल माजी जब आपको पढ़ाया गया था। तो तरका उसने छोड़ दिया, हम उन सबको, नुअज़्ज़िबु हम अजाब देंगे, फेल मुज़ारे जब पढ़ाया गया था तब आपको बताया गया था, नु का मतलब क्या होता है हम, नुअज़्ज़िबु हम अजाब देंगे, हम उन सबको, मना उसने मना किया, हम उन्हें या उन सबको। अगर हर्फ के साथ, अगर हर्फ के साथ हम हर्फ के आखिर में आए, हर्फ के आखिर में इस्तेमाल हो तो इसका तर्जमा वो सब या उन सब किया जाता है। ऐसे लहुम उन सब के लिए, लअल्लहुम शायद के वो सब, बिहिम उन सब से, फीहिम उन सब में, मिनहुम उन सब से, इन्नहुम बेशक वो सब, बेशक इन्ना का तर्जमा होता है और हम यानी वो सब, ये आप देख लेंगे पीछे बार बार आपको बताया जा चुका है। तो ये हम यहाँ पर खत्म हुआ। आगे कुम, ये अलामत इस्म फेल और हर्फ के साथ मिलकर इनके आखिर में इस्तेमाल होती है। तो ये क्या है, अलग इस्तेमाल नहीं होंगी, ये अलामत इस्म फेल और हर्फ के कहाँ आएंगी, आखिर में आएंगी। अगर इस्म के साथ आए यानी अस्मा के आखिर में आए तो इसका तर्जमा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे या अपना, अपनी, अपने किया जाएगा, यानी बिल्कुल वही जो आप इंग्लिश में योर का इस्तेमाल करते हैं। अमवालुकुम तुम्हारे अमवाल यानी तुम्हारे माल, औलादुकुम तुम्हारी औलाद, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, बनातुकुम तुम्हारी बेटियां, बनात बेटियां, बिअमवा बिन्त का प्लूरल वर्ड यहाँ पर, बिअमवालिकुम अपने मालों में से, अनफुसिकुम तुम्हारे नफ्स, इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, ज़ौज का प्लूरल वर्ड, माल का प्लूरल वर्ड अमवाल, उम्म का प्लूरल वर्ड उम्महात यानी कि मदर्स, और यहाँ पर अख का प्लूरल वर्ड यानी अखुन का प्लूरल वर्ड ब्रदर, ये इख्वान यानी कि ब्रदर्स। तो ये हो गया आपका कुम अस्मा के साथ। अगर ये कुम अफ़आल के एंड में आए, अफ़आल के साथ आए, फेल के साथ आए तो इसका तर्जमा क्या होगा, तुम्हें या तुम सबको, खलक़ा उसने पैदा किया, कुम तुम सबको, रज़क़ा उसने रिस्क दिया, कुम तुम सबको। ये वाला पार्ट आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, बस इसमें एक ये अलामत ऐड हुआ जो आज पढ़ाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, यतवफ़ा वो मौत देगा, वो फौत करेगा, कुम तुम सबको, युसव्विरु वो शक्लें बनाता है, वो तस्वीर बनाता है, वो शक्लें बनाता है, कुम तुम सबकी, यहदी वो हिदायत देता है, कुम तुम सबको। ये पीछे आपका फ़िल माज़ी में आ चुका है। आगे यूसी वो वसीयत करता है, यूसी वो वसीयत करता है, कुम तुम्हें, युनज़िरूना वो सब डराते हैं, युनज़िरूना वो सब डराते हैं, कुम तुम्हें, युनब्बिउ वो खबर देगा, कुम
तुम सबको, यनफऊना वो सब नफ़ा पहुँचाते हैं। देखिए यहाँ पर नफ़ा का ये निकल जाएगा यहाँ पर रूट लेटर नून फ़ाइन, यनफऊना वो सब नफ़ा पहुँचाते हैं कुम तुम्हें, पीछे आप पढ़ चुके हैं। आगे अगर हुरूफ के साथ आए, यानी कि अगर ये कुम हुरूफ के साथ आए तो इसका तर्जमा तुम सब किया जाएगा, जैसे मिन कुम तुम सब से, लअल्ला कुम ताकि तुम सब या शायद के तुम सब, फी कुम तुम सब में, बिकुम तुम सब के साथ, इलैकुम तुम सब की तरफ, अलैकुम तुम सब पर, इन्नकुम तुम सब बेशक, और इधर से हम बोलेंगे इन्नकुम बेशक तुम सब, लाकिन्ना लेकिन कुम तुम सब, लाकिन्नकुम लेकिन तुम सब। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीछे काफ़ी मरतबा हम लोग ये रिपीट कर चुके हैं, वही चीज़ बार बार आ रही है। तुम ये अलामत अमूमन फेल के आखिर में इस्तेमाल होती है, अमूमन आम तौर से क्या होता है फेल के आखिर में इस्तेमाल होती है और इसका तर्जमा तुम सब या तुम सब ने किया जाता है, जैसे ज़लम तुम सब ने जुल्म किया, यानी जुल्म किया तुम सब ने, आमनतुम तुम सब ईमान ले आए, कसबतुम तुम सब ने कमाया, हसिबतुम तुम सब ने गुमान किया, अमिलतुम तुम सब ने अमल किया, रज़ीतुम तुम सब राजी हो गए, कफरतुम तुम सब ने कुफ्र किया, तरक्तुम तुम सब ने छोड़ दिया, तनाज़अतुम तुम सब ने तनाज़ा किया झगड़ा किया, इस्तमताअतुम तुम सब ने फायदा उठाया, इस्तमताअतुम तुम सब ने फायदा उठाया। अब यहाँ पर नोट कर ले, अगर अंतुम और हुम के बाद, अंतुम और हुम के बाद अल वाला इस्म हो, यानी कि ऐसा इस्म हो जिसमें अलिफ लाम दाखिल हो, तो इस सूरत में क्या होगा, उस जुमले में ताकीद पैदा हो जाएगी, यानी कि उस जुमले में एम्फेसाइज हो जाएगा। और उसका हम तर्जमा कैसे करेंगे, ही से। आप किसी और जरिए से भी ताकीद के लफ्ज ला सकते हैं, जैसे उलाइका वो सब, हुम यानी वो सब, आगे अल आ गया तो ही हम कहेंगे, उलाइका हुमुल मुफलिहून वो सब ही फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का वो सब ही मोमिनीन हैं, और कैसे मोमिनीन हैं, हकीकी मोमिनीन हैं। व अंतुम और तुम सब, आगे मिलाएंगे तो मीम पर पेश आ जाएगा, व अंतुमुल आलौना और तुम सब ही गालिब रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम सब हो मोमिनीन, अगर तुम सब वाकई में मोमिन हो। अगर तुम के साथ किसी और अलामत लगाने की ज़रूरत हो, यानी किसी और आगे बढ़ाने की ज़रूरत हो, तो फिर इन दोनों अलामत के दरमियान ये वाव का इजाफा करना लाजमी हो जाता है, और इस सूरत में तुमू हो जाता है। यानी कि अगर ये तुम के साथ कोई और अलामत लगाने की ज़रूरत पड़े, जैसे यहाँ पर था कतल तुम, आगे ये हम लगाने की जरूरत पड़ी, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक वाव को ऐड कर दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मीम पर जो सुकून था वो जज़म बन गया। देखिए यहाँ पर कतल तुम था, तो अगर हम मिलाना है यहाँ पर तो इस वाव को ऐड कर दिया गया और मीम पर पेश डाल दिया गया, कतल तुमू हम तुम सब ने किसका तर्जुमा किया गया, ये तुमू का, असल में ये क्या था, तुम था, तुमू बन गया, आगे ये अलामत आने की वजह से, कतल तुमू तुम सब ने कत्ल किया, हम उन्हें या उन सब को, कत्ल तुमुहुम तुम सब ने कत्ल किया उन सब का, सअल तुमुहुन्ना तुम सब ने सवाल किया उन औरतों से, जितुमुना तुम सब आए हमारे पास, तक़िफ़्तुमुहुम तुम सब पाओ उनको या उन सब को। ये हुन्ना क्या है, यहाँ पर ये हम का फेमिनिन है, यानी फीमेल के लिए। अब यहाँ पर देख ले दरूद शरीफ की बात की जो दुआ आती है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैंने, ज़लमतु मैंने जुल्म किया, नफ्सी अपनी जान पर, जुल्मन कसीरन बहुत ज्यादा जुल्म, अल्लाहुम्मा इन्नी ए अल्लाह बेशक मैंने, ज़लमतु मैंने जुल्म किया, नफ्सी अपनी जान पर, जुल्मन कसीरन बहुत ज्यादा जुल्म, वला और नहीं, यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा गुनाहों को मुआफ़ कर सकता, इल्ला सिवाय अंता तेरे, ज़ंब यानी कि गुनाह और इसका प्लूरल वर्ड है ज़ुनूब, फ़ग़फ़िरली फिर, इग़फ़िर मुआफ़ कर दीजिए, ली मुझे यानी मुझे बख्श दीजिए,
मग़फ़िरतन यानी मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मेरे गुनाहों की पर्दा पोशी कर दीजिए, मिन इंदिका अपनी तरफ से, वरहमनी और रहम करिए मुझ पर, इन्नका बेशक आप, अंता आप, अल-गफूर बख्शने वाले हैं, माफ़ करने वाले हैं, पर्दा पोशी करने वाले हैं, अर्रहीम और हमेशा रहम करने वाले हैं। अब यहाँ पर वर्ड नंबर 41 है उलू। उलू देख ले, यहाँ पर पहले पढ़ना सीखे, इसमें ये वाव साइलेंट होता है, ये वाव साइलेंट होता है और ये अलिफ भी साइलेंट होता है बोलने में। उलू क्या है? ये इसम है, कुरान में 43 टाइम्स आए हुए हैं। तो उलू, उलू का मतलब क्या होता है? वाले, वाला, वाली, वाले होता है। अब यहाँ पर देख ले, कुरान में इस फॉर्म में आपको मिल जाएंगी उलू व उलू, उली व उली, ली उली, इस तरीके से। किताबुन ये है वो किताब, अंज़लनाहु हमने नाजिल किया इसे। हमने किसका तर्जमा है? ये ना का, और इसे मैंने किसका तर्जमा किया? इस हु का, इसे या इसको। किताबुन दिस इज अ बुक, अंज़लनाहु वी हैव रिवील्ड इट, इलैका आपकी तरफ, मुबारकुन मुबारक है, बरकत वाली है, लियद्दब्बरू ताकि वो तदब्बुर करे, ताकि वो गौर करे, ताकि वो पॉन्डर करे, आयातिही इसकी आयात पर, इसकी निशानियों पर, आयात की तर्जमा रखें इसको, वलियज़क्करा और ताकि क्या कहें, नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब अक्ल वाले। ये पहले भी समझा चुका हूँ, यहाँ पर एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। समझ में नहीं आ रही मतलब आपने पीछे सही से देखा नहीं है। आगे यहाँ पर लव, देख लो कुरान में कितनी मर्तबा आया है, और ये क्या है? यहाँ पर ये हर्फ है, पीछे वो जो था वो इसम था, और ये क्या है? ये हर्फ है। लव क्या है? हर्फ है। लव का मतलब होता है इफ, जिसे आप उर्दू में अगर कहते हैं। व और लव, अगर। शाह अल्लाहु अल्लाह ने चाहा, शाह मतलब होता है उसने चाहा। अब यहाँ पर अल्लाह का नाम आ गया, यानी कि अल्लाहु यानी अल्लाह ने चाहा। वलौ शाह अल्लाहु और अगर अल्लाह ने चाहा, लजअलहुम तो जरूर बना देता हम उन्हें। देखिए हम आज ही पढ़ा हमने, उम्मतन वाहिदा एक उम्मत, और यहाँ पर देख ले किस किस फॉर्म में आते हैं, वलौ, वलवी, फिर अवलौ, फिर फलौ। आगे है यहाँ पर ली, ली का मतलब होता है लिए, बहुत मर्तबा आ चुका है यहाँ पर। अब देख ले, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, माँ जो फिस समावात आसमानों में है, वमा और जो फिल अर्द जमीन में है। ये आयत आपके लिए बिल्कुल इजी होनी चाहिए। और यहाँ पर देख ले, लहू वलहू फलहू लहुम वलहुम फलहुम अलहुम, ये सारे का भी आप तर्जमा कर सकते हैं। फिर आप अपने आप को वेरीफाई कर ले। फिर मिन, यहाँ पर मिन का मतलब क्या होता है? से, ये भी आपको बताया जा चुका है। अऊज़ु, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप इसे खुद से करेंगे। और यहाँ पर इन सबको देख ले, वीडियो को पॉज करें और मेहनत करें कुरान अगर वाकई में सीखना चाहते हैं। अन, इसे भी बता दिया कि इसका मतलब भी क्या होता है? से। यहाँ पर नहीं आया थे तो इसे आप देख लेंगे। रदिया, राजी हुआ यानी वो राजी हो गया। अब कौन राजी हो गया? उनका ये नाम आ गया, रदियल्लाहु राजी हुआ अल्लाह, अन्हुम उन सब से, वरदू और वो राजी हो गए, अन्हु उससे, यानी अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही है, ये देखें ही का तर्जमा इस अल की वजह से, यही है बहुत बड़ी कामयाबी, यानी कि वो अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह उनसे राजी हो गया। कितने खुश नसीब लोग थे। आगे लक़द, लक़द क्या है? हर्फ है, यहाँ पर कुरान में बहुत बार इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर लक़द, लक़द मतलब होता है सर्टेनली, यानी आप जिसे उर्दू में यकीनन कहते हैं, श्योरली कहते हैं। वलक़द और यकीनन या और तहकीक एंड सर्टेनली, यस्सरना हमने आसान कर दिया है, ना मतलब हमने आसान कर दिया। वलक़द और तहकीक यानी कि बात साबित हो गई है, वलक़द और तहकीक एंड सर्टेनली, यस्सरना हमने आसान कर दिया है, अल कुरान कुरान को, लिज़्ज़िक्री नसीहत के लिए, ज़िक्र यानी कि नसीहत, याद दहानी के लिए, फहल फ तो हल क्या है, फहल तो क्या है, मिम मुद्दकिर कोई नसीहत हासिल करने वाला, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिम मुद्दकिर, ये भी बहुत फेमस आयत है, आपने वर्ड बाय वर्ड देख लिया। अल कुरआन यानी कि कुरान, वही आयत है। यहाँ पर देख ली किस किस तरीके से कुरान में आता है। इन का मतलब होता है अगर, हर्फ ये इन
जानते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। तो इन मतलब क्या होता है अगर। अभी लव भी पढ़ा था आपने, तो लव का भी मतलब क्या था अगर। तो इन अगर, सतजिदुनी, जब कोई काम जल्द ही होने वाला हो तो उसके आगे स लगाते हैं, ठीक है, स या सौफा, दोनों में फर्क क्या है आगे बता दिया जाएगा आपको। तो सतजिदुनी, आप जल्द ही पाएंगे मुझे, इन अगर, शाह अल्लाहु, अल्लाह ने चाहा, मिनस साबिरीन, सब्र करने वालों में से। सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। आगे वर्ड नंबर 49, शीन या हमजा, शाह उसने चाहा, शाह उसने चाहा, फिर आगे आ गया शाह अल्लाहु यानी कि अल्लाह ने चाहा, वही आयत है, आप देख लेंगे रोक कर। उसके बाद इन्ना, इन्ना यानी कि बेशक, जब आप कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं, यानी कि इन्ना बेशक, जैसे आप इंग्लिश में इंडीड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने तरीके से कुरान में इस्तेमाल हुए और इन सब का आप तर्जमा आसानी के साथ कर सकते हैं। एक यहाँ पर देख ले, इन्ना बेशक हमने, इन्ना यानी कि तो, इन्ना बेशक हमने। तो वस्बिरु और सब्र करो, इसबिरु था आगे व, और मिलाने की वजह से अलिफ यहाँ पर हमज़तुल वस्ल होने की वजह से साइलेंट हो गया। वस्बिरु और सब्र करो, इन्ना इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह, अल्लाह, मा यानी कि साथ, अस्साबिरीन सब्र करने वाले, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन बहुत आपने सुना होगा। आगे इन्नमा, इन्नमा इसको मैंने आपको बताया है क्या कहते हैं एक शॉर्ट में कि इन्नमा का मतलब क्या है कि बात सिर्फ इतनी ही सी है कि, तो इन्नमा बात सिर्फ इतनी ही सी है कि। अब देख लें यहाँ पर कुल, कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा सिर्फ यानी कि बात सिर्फ इतनी ही सी है कि अना मैं, बशरुन बशर हूँ, इंसान हूँ, मिथलुकुम तुम्हारे जैसा, यूहा वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ, अन्नमा कि फ़कत, इलाहुकुम तुम्हारा माबूद, इलाहु वाहिद एक माबूद है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। अब देख ले यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड आपको बता दिया गया। अमला यानी कि उसने अमल किया, या आप काम कह सकते हैं। अब देख ले यहाँ पर वलना और हमारे लिए, आमालुना हमारे आमाल हैं, वलकुम और तुम्हारे लिए, आमालुकुम तुम्हारे आमाल हैं, वनहनु और हम, लहू उसी के लिए, मुखलिसून मुखलिस हैं, सिंसियर हैं। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम वनहनु लहू मुखलिसून। आपको ये बखूबी समझ में आना चाहिए। आगे बी, बी का मतलब से या साथ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देख लिया हमने। फी का मतलब होता है में, यहाँ पर सूरह नास का वर्ड दिया हुआ है। अल्लज़ी वो जो, अल्लज़ी द वन हु, युवस्विसु वसवसा डालता है, फी सुदूर, अभी देखा था सुदूर यानी कि सीना, यहाँ पर ये सदर का प्लूरल वर्ड है, सदर यानी कि सीना चेस्ट, इसका प्लूरल वर्ड सुदूर। अल्लज़ी जो युवस्विसु वसवसा डालता है, फी सुदूरिन नास लोगों के सीनों में। और देख लीजिए यहाँ पर किस किस फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं कुरान में। अस्सबील, सबील यानी कि रास्ता, अस्सबील यानी कि रास्ता, ये इसमें अलिफ लाम से आपने पहचान लिया होगा, रास्ता या आप द वे कहते हैं। इन्ना बेशक हमने, यानी इसमें शक नहीं है, तो इन्ना बेशक हमने, हदैनाहु उसे दिखाई, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने उसे दिखाया, अस्सबील रास्ता, इम्मा चाहे, शाकिरन वो शुक्र करने वाला हो, व इम्मा और चाहे, कफूरा वो ना शुक्रा हो। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अला, अला यानी कि पर, अला यानी कि पर, व अला बार बार आ चुका है ये, व अलल्लाहि और अल्लाह पर, फलयतवक्कलिल मुमिनून चाहिए कि भरोसा करे मोमिन, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। अगला अल्लज़ी, अभी पीछे आया था, अल्लज़ी वो जिसने, अल्लमा सिखाया, बिल कलम कलम के साथ, कलम के जरिए, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अय्यू, अय्यू का मतलब होता है कौन या कौन सा, ये नया वर्ड आ गया यहाँ पर, तो अय्यू का मतलब कौन या कौन सा, जैसे आप इंग्लिश में विच कहते हैं। अय्युकुम, कुम का मतलब तुम सब, कौन तुम सब में, अहसनु बेहतर है, अमला अमल के एतबार से, अय्युकुम अहसनु अमला
تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، عمل میں. تو ایو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون یا کون سا. احسنا یعنی کہ بہتر. وہی آیت ہے یہاں پر، یہ ورڈ نمبر 59 ہو گئے. اب لاسٹ ورڈ دیکھتے ہیں یہاں پر الہ یعنی کہ کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا بے شک ہم نے، للہ یا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں.